Hello everyone, this is Poonam. I welcome you all in today's physics session. In this session, we are going to learn about the topic equation of motion. And our today's topic is first equation of motion. V is equals to U plus AT. See, there are mainly three equations of motion or kinematic equation. This topic is very important. Three equations are very important. First equation is V is equals to U plus AT. S is equals to UT plus half AT square. And third equation is V square minus U square equals to 2AS or V square equals to U square plus 2AS. In this equation, U is a initial velocity of a body, V is final velocity of body, S is displacement, A is acceleration and T is time. So, these are the three very important equations of motion. So in this class, we are only discuss the first equation, V is equals to U plus AT. So let's start. But before study the equation of motion, we are discuss about the slope. Why slope is important or what is the use of slope? The slope is used for the change in dependent variable as a independent variable. स्लोप को हम क्यों यूज करते हैं? किसी वेरिएबल में जो चेंज है उसे फाइंड करने के लिए. अब सी हियर वी हैव टेकन द ग्राफ वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. हमने यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ लिया हुआ है. वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम. अगर हमने वेलोसिटी और टाइम का स्लोप निकाला तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा. सो इसकी वजह से हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया है. हियर द बॉडी इज एट रेस्ट. सो ग्राफ इज स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन. बॉडी इज एट रेस्ट. फर्स्ट सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज 20 मीटर पर सेकेंड. After 2 seconds, the velocity of a body is 40 seconds. Means the body changes its velocity uniformly. Means velocity change, that is acceleration. Acceleration is uniform. So see. So in this graph, we have find a slope. Slope means change. हम यहाँ change find करेंगे. Suppose अब देखिए, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पर हमने टाइम लिया है एंड वाई एक्सिस पे वेलोसिटी लिया है. सो अब अगर हमें इस दो पॉइंट का ग्राफ फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? तो स्लोप के लिए एक फॉर्मूला है. स्लोप इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. This is the formula for slope. Suppose this is a point A and this is a B point. For A point, the velocity is 40 meter per second and for B point velocity is 60. For A point time is 2 seconds and B point time is 3 seconds. So consider x1 is a 2 second or this is x1, this is x2, this is y1, this is y2. So slope equals to y2 minus y1 means 60 minus 40 and x2 3 minus 2. So 60 minus 40 equals to 20 and 3 minus 1 equals to 1 means 20. अब इसका यूनिट देखिए 20.
ऊपर क्या है, वेलोसिटी मीन्स मीटर पर सेकेंड एंड नीचे टाइम, सो यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज अ यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, सो दिस इज अ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इज। ठीक है, तो अगर हम वेलोसिटी और टाइम का चेंज फाइंड करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, तो इस तरह हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम प्रूव करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। उसके लिए भी हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ही ग्राफ स्टडी करेंगे। सी, this is a graph for uniform acceleration but body is not at a rest. body रेस्ट पे नहीं है, उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, तो u is a initial velocity and body is changes uniformly, velocity changes uniformly and b is a final velocity, means that point this is a final velocity. इनिशियल वेलोसिटी हम u से डिनोट करेंगे एंड फाइनल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय v। अब देखिए इन टाइम t, इस टाइम में ये वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज कर रहा है, तो सपोज हमने ये यहाँ से कनेक्ट किए c, यहाँ पे हमने कनेक्ट किए और हमें इस पॉइंट को हमने नेम दे दिए, दिस इज a पॉइंट, b c पॉइंट, दिस d एंड दिस इज e पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम तो हमने देख लिया। अब इस ग्राफ से हम इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वो फाइंड करेंगे। OD मीन्स और AE दिस इज अ इनिशियल वेलोसिटी, तो हम क्या लिख सकते हैं, OD इक्वल्स टू AE इक्वल्स टू initial velocity that is u, OC and BE this is the final velocity, so हम लिख सकते हैं इसे OC equals to BE equals to V and OE equals to OE और AD equals to time t। तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम को तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम इसका इक्वेशन प्रूव करते हैं। सी, सेम ग्राफ लिया है हमने। अब हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन, यानी कि ये जो यूनिफॉर्मली उसकी वेलोसिटी चेंज कर रही है, वेलोसिटी में चेंज है यानी कि एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। बट चेंज किस में हो रहा है, देखिए A और B में और BA में और CD में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, BE इक्वल्स टू, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं BE इक्वल्स टू BE, दिस BE इक्वल्स टू BA प्लस AE, BA इक्वल्स टू AE और क्या लिख सकते हैं हम, CO इक्वल्स टू दिस साइड, CO इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ CO इक्वल्स टू CD प्लस OD। तो हमें क्या चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी, यानी ये चेंज, वो चेंज किस में हो रहा है, BA में और यहाँ पे CD में। तो BA क्या आएगा इस इक्वेशन से, BA इक्वल्स टू, सिर्फ हम इसे रीअरेंज करेंगे टर्म्स को, तो क्या मिलेगी हमें न्यू टर्म, BA equals to BE, here it's a plus sign, BE equals to BA plus A, so BE minus AE and इस इक्वेशन में हमें CD क्या मिलेगा, CD is also change in velocity,
सी डी इज इक्वल्स टू सी ओ माइनस ओ डी। तो बी ए क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी को ही हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन, बी ए। सो बी ए इज इक्वल्स टू बी ई माइनस ए। बी ई क्या है? बी ई, ये जो टोटल टर्म दिख रही है आपको, होल टर्म, ये क्या है? v। सो इज इक्वल्स टू v एंड ए दिस इनिशियल वेलोसिटी, ए इज u और बी ए इज चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन। सो a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, a इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन दिस da इज अ टाइम t। सो अगर हमने यहाँ पे भी फाइंड किया तो वही आएगा। सी डी इक्वल्स टू क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज एक्सेलरेशन। सी ओ क्या मिलेगा? v एंड ओ डी मिलेगा u एंड t टाइम। तो t अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या इक्वेशन मिलेगा हमें? न्यू v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। ये v u माइनस है तो उस साइड जाकर वो होगा प्लस, तो हमें इक्वेशन मिलेगा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इस थ्री इक्वेशंस में थोड़ा मैथ्स यूज किया हुआ है, सो वॉच द वीडियो केयरफुली। सो दिस इज अ प्रूफ ऑफ इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ऐसे हम फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव करेंगे। मैं फिर से रिवाइज करती हूँ अगर आप नहीं समझे तो, कैसे फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव करना है। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है? चेंज इन वेलोसिटी मीन्स एक्सेलरेशन फाइंड किया है। चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो चेंज किस में हो रहा है? अगर आप ग्राफ में देखेंगे तो चेंज बी ए में हो रहा है, बी ए में चेंज हो रहा है। हम सिर्फ एक ही इक्वेशन, एक ही साइड का निकालते हैं, बी ए, इसमें चेंज हो रहा है यानी कि इस टर्म में चेंज हो रहा है। तो हम बी ए को क्या लिखेंगे? टोटल बी ई को क्या लिखेंगे? बी ई इक्वल्स टू बी ए प्लस ए ई ए। बट बी ए हमें चाहिए चेंज इन वेलोसिटी, तो बी ए क्या मिलेगा? बी ए इक्वल्स टू बी ई माइनस ए ई। तो बी ए क्या है हमारा? चेंज इन वेलोसिटी यानी कि एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू बी ई। बी ई क्या है? ये पूरी टर्म, फाइनल वेलोसिटी v, और ए ई क्या है? ए ई है छोटी, इनिशियल वेलोसिटी u। विथ रिस्पेक्ट टू क्या फाइंड किया है हमने? टाइम के रिस्पेक्ट में यानी कि t, और यहाँ पे तो एक्सेलरेशन है। a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। ए टी मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड है, यहाँ पे इस साइड जाकर वो मल्टीप्लाई होगा। ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, और ये माइनस साइन यहाँ पे आकर प्लस हो जाएगा। तो हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगा v इज इक्वल्स टू यू प्लस 8। सो दिस इज अ प्रूफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ऐसे ही हमें सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन प्रूव करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमने चेंज इन वेलोसिटी यानी कि एक्सेलरेशन फाइंड किया, और उससे फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी को प्रूव किया। I hope students you are understood.